Sons? All right. So in today's class, what we will be doing is we will be taking a recapitulation of whatever we have discussed till now. The message will reach to you regarding the extra class that will be perhaps tomorrow, and the timing will be from 12 p.m. to 1:15 or 1:20. Whatever will be there, that the timing will be like that only. Okay. And in that class, we will be discussing. In that class, we will be discussing this thing, your polynomials exercise number 3, that we will be discussing in that class. Now let us move ahead about this topic, that was linear equation in two variable. We have discussed most of the things in the chapter. Two three things are left, two three small things are left. So we started with what are linear equations. We learned that ax plus by plus c equal to 0 is the general form of a linear equation. Ax plus by plus c equal to 0 is a general form of linear equation. Now then what happened is we learned about the solution of the linear equation, that there can be unique solution, there can be infinitely many solution, or there can be no solution. So these are the things that we learn. These are the things that we learned, that there can be unique solution, there can be infinitely many solution, or there can be no solution. This is how the graph of the equations look. This is how the graph of the equations look like. Okay. Next is Next, we learned the questions by solving the things. That is, we learned how to solve the linear equations by substitution method. Then we also learned how to solve the linear equation by equating the coefficient. And the last thing that we learned was the solution of the equation by cross multiplication method. Then we solved lot of questions regarding that. We solved lot of questions regarding that, like how to solve a particular question by using the three methods that we discussed. Then further we also solved the question by using the graphical method. ग्राफ का यूज करके अपन किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. This is what we learned in the till last classes. This is what we have learned. Few questions also we discussed. Few questions also we discussed. Now, before proceeding ahead, see, the questions are unlimited. There are a lot of questions in this topic. Before proceeding ahead, what we will discuss is, first of all, we will discuss about the conditions of solvability. Conditions of solvability. See, I'm having two linear equations. One equation is a1x plus b1y plus c1 equal to 0. And another equation is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. If I will solve them, आप लोगों को याद होगा कि जब अपन इन क्वेश्चंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर रहे थे, तो आई यूज्ड टू गेट द डिनोमिनेटर, एंड द डिनोमिनेटर वाज a1b2 minus a2b1. Now, this is the condition that this A1, B2 should not be minus A1, B2 minus A2, B1 cannot be equal to 0. Agar A1, B2 minus A2, B1, if it becomes equal to 0, then what will happen? My equation will not have a solution. हमारी जो x की value आ रही थी, that was coming out to be something in the numerator divided by a1 b2 minus a2 b1. अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो it has no meaning. If this becomes 0, then it has no meaning. That is why we say that a1 b2 minus a2 b1 should not be equal to 0. a1 b2 minus a2 b1 should not be equal to 0, or I can say that a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. This is the condition when the equations have unique solution. That is, when the equations have unique solution, that is when the graphs intersect at only one point.
This is the equation when the this is the condition when the equations have unique solution or the graphs intersect at only one point. Okay, this was the condition. Now see when so the condition for unique solution is a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, and this is also said, this is also said that the system of condition the system of linear equations are consistent. ऐसा केस जहां पे हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, हम ऐसे केसेस में ये बोलते हैं कि माय सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो ये हो गया हमारी कंसिस्टेंसी की कहानी। अब देखो बेटा, इस पे एक सवाल आता है और इस सवाल में मैक्सिमम लोग गलत करते हैं। द क्वेश्चन इज से 3x प्लस के वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा मान लो 7x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक कंडीशन है। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द वैल्यू ऑफ y, find the value of k for which the condition of the system of linear equation will have unique solution or it will be consistent। ठीक है, ये आपके पास सॉल्यूशन है। आप क्या करोगे, आप सीधे सीधे ये करोगे a1 by a2 is not equal to b1 by b2। आप यहाँ पे लिखोगे 3/7 is not equal to k/2, that will give me k is not equal to 6/7। और ये आप लिख कर आ जाओगे और आप बोलोगे कि हाँ भाई पापा मम्मी, आई हैव डन द पेपर वेल, आई विल बी गेटिंग 100 out of 100 marks। नो, you will not get even a single mark in this question। Why? Because condition में question is asking find the value of k for which the equation has this value, for find the value of k for which this equation is linear। आप क्या बोल रहे हो कि k should not be equal to this। यहाँ पे इनफैक्ट व्हाट यू शुड राइट, ये वही सिचुएशन हो गई, मुझसे किसी ने मेरा नाम पूछा तो मैं बोलूंगा माय नेम इज नॉट अनिमे, माय नेम इज नॉट श्रेय। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि माय नेम इज अनिमेश, बट मैं ये बोल रहा हूं कि माय नेम इज नॉट श्रेय और माय नेम इज नॉट सौरभ राज। मैं ये बता रहा हूं, मैं उसको अपना नाम नहीं बता रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा नाम ये नहीं है। अरे आप अपना नाम बताओ ना यार, ये क्यों बता रहे हो कि आपका नाम क्या नहीं है। So in order to avoid the mistake, what you should write that k can take any real value, k can take any real value except 6/7। k can take any real value except 6/7। This is what you should write in the question। This is what you should write as the part of the solution of this question। Okay, क्या मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ गई? Yes sir। गुड। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको ये नहीं लिखना है कि आपका नाम अनिमेश नहीं है या आपका नाम श्रेय, आपको ये नहीं लिखना है कि मेरा नाम श्रेय है या मेरा नाम सौरभ राज है या मेरा नाम कृष्णा करिश्मा जो भी है वो है। आपको ये लिखना है कि मेरा नाम अनिमेश है। बात को समझो यहाँ पे, दिस इज द डिफरेंस, दैट इज व्हाई दिस पीपल लूज। कांट वी राइट एनी नंबर एट, नो, you have to do according to the condition। आप कोई भी नंबर लिखोगे और आप उसको प्रूफ कर दोगे कि हाँ यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। आप कितने नंबर्स के साथ जाओगे, आप कितने नंबर्स के साथ जाओगे बताओ। आपने बोला सर k = 1 के लिए मैंने किया, तो ठीक है k = 1 के लिए यूनिक सॉल्यूशन आया, k = 2 के लिए यूनिक सॉल्यूशन आया। आप क्या सारे केस k की वैल्यूज के लिए चेक कर पाओगे? नो, यू वोंट बी एबल टू चेक। सो इसीलिए जो बोला जा रहा है वो कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज द थिंग, दिस वाज द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है सर? a1 by a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 by b2। नाउ नेक्स्ट इज नो सॉल्यूशन की कंडीशन आ गई। नो सॉल्यूशन की कंडीशन में क्या होता है सर?
नो सॉल्यूशन की कंडीशन में ये होता है कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन में क्या होता है, जो ग्राफ थे हमारे, याद हो अगर आप लोगों को, जो पिछली क्लास में जो अपन ने ग्राफ पढ़े थे, नो सॉल्यूशन की कंडीशन में क्या था, द लाइंस वर पैरेलल, the lines were parallel, and in that case what happens is a1 by a2 is equal to b1 by b2, but it is not equal to c1 by c2. a1 by a2 is equal to b1 by b2, but it is not equal to c1 by c2. This is the condition for no solution. No solution का क्या condition है सर? a1 by a2 is equal to b1 by b2, but it is not equal to c1 by c2. This is the condition for no solution. अब अगेन सेम चीज मान लो, एक आपके पास क्वेश्चन है 3x प्लस के वाई प्लस से लेमडा इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी कंडीशन है 6x प्लस से 9y प्लस से 5 इज इक्वल टू 0. अब आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k and lambda for which the system of equation will have no solution. For which the system of equation will have no solution. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे k की वैल्यू निकालने के लिए आप ये करोगे 3/6 is equal to k/9. That gives me k is equal to 9/2. यहाँ पे तो आप लिख दोगे कि for k is equal to 9/2 the system will have no solution, but at the same time you have to calculate the value of lambda also. So 3/6 is not equal to lambda upon 5. That means lambda is not equal to 5/2. यानी कि आप ये लिखोगे कि the value of k will be equal to 9/2, but lambda can take any real value except lambda is equal to 5/2. Lambda can take any real value except lambda equal to 5/2. This is what is the method of writing this question. This is what is the method of writing this question. What I was saying that the condition for no solution is a1 by a2 is equal to b1 by b2, but it should not be equal to c1 by c2. The condition for no solution is a1 by a2 is equal to b1 by b2, but it should not be equal to c1 by c2. That is what is the condition. अगर हमारे पास question ये आता है, find the value of k and lambda for which the given system of given equation will have no solution. तो सबसे पहले तो आप a1 by a2 is equal to b1 by b2 से you calculate the value of k. Then what will happen? You have a1 by a2 is not equal to c1 by c2. यहाँ से आपके पास lambda की वैल्यू मिलेगी. तो lambda is not equal to 5/2 and k is equal to 9/2. But how you will write the answer? While writing the answer, you will write that k is equal to 9/2 and lambda can take any real value except lambda equal to 5/2. This is how the question is to be done. This is how you can write the things. Now let us move ahead. Next, हाँ बोलिए. सर एक डाउट था सर, जो फर्स्ट मेथड थी कि हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, उसमें सर C1 by C2 के साथ कुछ रिलेशन होगा? C1 by C2 का कोई रिलेशन नहीं है. यू आर नॉट सपोज टू वरी अबाउट C1 by C2. जब मेरी कंडीशन ही ये आ गई, देखो C1 by C2 के साथ इसलिए नहीं रिलेशन है क्योंकि जब अपन ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया था, नाउ सी, जब अपन ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया था तो देखो व्हाट वाज द रिजल्ट वी वर गेटिंग द रिजल्ट x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1. Similarly, we were getting the result y is equal to something upon a1 b2 minus a2 b1. अगर ये a1 b2 minus a2 b1 जीरो हो जाए, अगर ये क्वांटिटी जीरो हो जाए तो ये जो वैल्यू आएगी ये इनडिटर्मिनेंट आएगी. इस वैल्यू इज समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो दैट इज नॉट डिफाइंड. तो इसीलिए आई एम कंसर्न्ड अबाउट a1 b2 माइनस a2 b1 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट c की वैल्यू कुछ भी हो.
सी की वैल्यू कुछ भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन अपन लेते हैं 3x + 5y इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हम लेते हैं से 7x + 3y is equal to 0. These two systems, in these two equations, we have C1 equal to 0. And we have C1 and C2 equal to 0. But yes, these two equations have solution. And the solution is 0, 0. इन दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है एंड द सॉल्यूशन इज 0, 0. बट अगर मैं ऐसा लीनियर इक्वेशन बोलता हूं से अगर मैं ये बोलता 3x + 5y is equal to 0 and 6x + 10y 6x + 10y is equal to 0, इन दोनों इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, बिकॉज द टू लाइन्स आर साइमल्टेनियस। इन दोनों इक्वेशन का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता, इन दोनों इक्वेशन का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता। या अगर मैं ऐसा बोलता, दूसरी इक्वेशन को अगर मैं चेंज कर देता से सर उनका तो सॉल्यूशन ही नहीं होता ना सर। इनका नहीं, जो यहाँ पे जो लिखा था उनका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता। सारे पॉइंट्स जो कि इस लाइन पे एग्जिस्ट करते वो दूसरी वाली लाइन को भी सेटिस्फाई करते, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता। अब जो बता रहा हूँ वो सुनो। अगर मैं दूसरी इक्वेशन बोलता 6x + 10y इज इक्वल टू 3, इन दोनों लाइंस का जो ग्राफ होता वो ग्राफ आपस में पैरेलल होता। इन दोनों लाइंस का जो ग्राफ होता है वो आपस में पैरेलल होता है, इसलिए इन दोनों लाइंस का नो सॉल्यूशन होता। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। समझ में आई बात श्रेय? ये सर आ गया। ठीक है, चलो। दैट इज व्हाई वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट C1 एंड C2 हियर। ओके, नेक्स्ट थिंग इज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की बात हो गई कि कैसे कैसे अपने को करना है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? आप देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो यूनिक सॉल्यूशन के केस को हम लोग कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। यूनिक सॉल्यूशन के केस को कंसिस्टेंट बोलते हैं, नो सॉल्यूशन के केस को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के केस को हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं। सो कंसिस्टेंट कौन कौन से हो गए सर? कंसिस्टेंट हो गया यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक एंड इनफाइनाइटली मेनी, और इनकंसिस्टेंट हो गया नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट इज नो सॉल्यूशन। ठीक है सर, अब आगे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर ये जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन सबसे आसान होती है, वो होती है सर कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। दैट्स इट। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, कैसे आंसर को लिखना है दैट आई हैव टोल्ड यू, हाउ यू हैव टू राइट द आंसर दैट आई हैव टोल्ड यू। नाउ दिस इज a question in front of you. Please solve this question and tell me till then for which the given system of equation has only one equation ही गायब है, I am sorry for this. Okay, for which this system has infinitely many solution, you have to tell me the value of k. Your time is till I finish my water. चलो जल्दी, जल्दी बताओ, जिनका सॉल्व हो गया आंसर बताइए। अब भाई आप लोगों का भी यही आया होगा, +8 नॉट -8। क्यों भाई, वाई नॉट -8? ये सर प्लस क्योंकि दूसरे वाले को इक्वेट करके देखे तो सिर्फ +8 ही सॉल्यूशन है, -8 नहीं है। तुम यार शांत हो जाओ यार, अगली बार से आई विल म्यूट यू। ठीक है, लेट मी आस्क अदर्स। श्रेय आप तभी बोलेंगे जब आपसे पूछा जाएगा। भाई आपका फ्रेंड यहाँ पे
k square is equal to 64 IR. That gives me k is equal to plus minus 8. Your friend has given me some logic that is over my head. मेरे सिर के ऊपर से निकल गया. कोई मुझे बता सकता है why I have not taken minus 8 and why I have taken only plus 8? Anybody? सर बिकॉज -8 लेंगे तो सर वो k -4 अपॉन k को सेटिस्फाई नहीं करेगा सर. मतलब k -4 अपॉन k वो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के Very good, very good. See, the thing is if you take k equal to -8, यहाँ पे ठीक है, k की वैल्यू 2 आ गई मेरी, मुझे पता है, अच्छी बात है सर, k की वैल्यू 2 आ गई, बट आई हैव टू फाइंड आउट विच वैल्यू इज सेटिस्फाइंग माई इक्वेशन. किस वैल्यू को पुट करने पे मेरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं. अगर मैं k इक्वल टू -8 ले रहा हूं क्योंकि -8 पे ही प्रॉब्लम है सर, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, -8 अपॉन 16. वेरी गुड, इट शुड बी इक्वल टू 4 अपॉन -8. इट शुड बी इक्वल टू 4 अपॉन -8. यहां तक तो सारी चीजें ठीक हैं. दैट शुड बी इक्वल टू k -4 अपॉन k. k -4 will be -8 -4 upon -8. Now this is not equal to 1/2. यहाँ पे ये प्रॉब्लम है. ये वही सिचुएशन हो गई बेटा कि आपने कोई बहुत मेहनत करके कोई स्पीड वगैरह निकाला. एक स्पीड आपकी 120 किलोमीटर पर आवर आई, दूसरी स्पीड आपकी -120 किलोमीटर पर आवर आई. दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव. वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वैल्यूज आएंगे, मानता हूं मैं. यहां पे इस इक्वेशन के दो वैल्यूज आ रहे हैं, बट एक वैल्यू ही आपकी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, दूसरी वैल्यू आपकी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी. सो दिस यू हैव टू रिजेक्ट. यू शुड ऑल्सो लर्न इन रिजेक्टिंग सम वैल्यूज. आपको यू शुड लर्न टू रिजेक्ट सम वैल्यूज ऑल्सो. Okay, now before I proceed ahead, a question मेरे को याद आ गया that I want to discuss. चलो, let us move ahead. तो infinitely many solutions वाला condition कर लिया. ये अभी अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ठीक है. तो ये तो भाई ये हो गए कुछ क्वेश्चंस, एंड देन दिस इज योर चेक योर प्रोग्रेस दैट यू हैव टू डू. Next part, the most important part, the section that fetches you the maximum mark is the word problem. Word problem क्या है सर? रियल लाइफ के स्टेजेस पे आपके पास प्रॉब्लम आएगी. इक्वेशन फॉर्म करो, आंसर निकालो, मार्क्स लो और आगे बढ़ो. ज्यादा कुछ करना नहीं है. रियल लाइफ की स्टेजेस पे आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी. इक्वेशन फॉर्म करो, मार्क सॉल्यूशन निकालो, जो सॉल्यूशन रिजेक्ट होता है उसे रिजेक्ट करो और मार्क्स लो और आगे बढ़ो. कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसको पढ़ने में, इसको करने में अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मुझसे पूछो तो मुझे खुद नहीं पता कौन कौन से टाइप्स होते हैं. मुझे डायरेक्टली सवाल दिखता है. सवाल पे चलो, देखते हैं सवाल क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन, a boat goes 12 kilometer upstream and 40 kilometer downstream in 8 hours. एक कोई बोट है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है. 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में उसे जो टोटल समय लगा वो लगा उसे 8 घंटे का. ठीक है. इट कैन गो 16 kilometers upstream and 32 kilometers downstream in same time. Same time मतलब वही 8 घंटे. Find the speed of the boat in still water and the speed of the stream. देखो भाई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़ो. जो भी चीजें आपसे पूछी गई हैं, ये जो फाइंड वर्ड है ना, इस फाइंड वाले वर्ड को ढूंढो. जो भी चीज आपसे पूछी गई है उसको एक्स वाई जेड ए बी सी अल्फा बीटा गामा जो मानना है मान लो. उसके बाद थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, मार्क्स लो. देखो कैसे. हमसे 2 चीजें पूछी गई हैं, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. मैं ज्यादा चीजें नहीं लिखूंगा यहाँ पे. मैं लैंग्वेज डिक्टेट कर रहा हूं, आप लैंग्वेज को ध्यान रखना. जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप ऐसे ही करोगे. आपको क्या लिखना है? लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज x. Speed of the boat in still water is x and
speed of the stream is y. Speed of the stream is y. So speed upstream को नॉर्मली अपन u कॉमा s लिखते हैं, अपस्ट्रीम को अपन u ऑब्लिक s लिखते हैं. Speed upstream will be equal to x minus y and speed downstream will be equal to x plus y. Now according to the question what I am having, 12 किलोमीटर upstream में गया, distance is equal to time is equal to distance upon time, distance upon speed. So 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाने के बाद अब इसके बाद लिखो ATQ, आगे कुछ नहीं लिखना है, सीधे लिखो ATQ 12 upon x minus y plus 40 upon x plus y is equal to 8 and 16 upon x minus y plus 32 upon x plus y is also equal to 8. ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गई, दो वेरिएबल हो गए. अब आपको इसको सॉल्व करना. देखो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता तो मैं आपको सीधे सीधे ये बोलता बेटा यहां से 4 कॉमन लो, कैंसिल करो और इसको डायरेक्टली कैंसिल करके x माइनस वाई और x प्लस वाई की वैल्यू निकालो और उनको सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दो. लेकिन ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तरीका क्या बताया था? लेट u x माइनस वाई इज इक्वल टू u 1 अपॉन x, आई एम राइटिंग हियर, हाँ, 1 अपॉन x माइनस वाई को u मान लिया और 1 अपॉन x प्लस वाई को v मान लिया. तो मेरी जो इक्वेशन बनी वो बनी 12u प्लस 40v इज इक्वल टू 8 एंड 16u प्लस 32v इज ऑल्सो इक्वल टू 8. अब सॉल्व करना है सर, सॉल्व करना है तो कई सारे तरीके हैं. या तो सबसे पहले 3 को, मेरे को तो सर 2 काफी चीजें कॉमन दिख रही हैं, तो आई कैन राइट माई फर्स्ट इक्वेशन एज 3u plus 10v is equal to 2 and 2u plus 4v is equal to 1. अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर लो. व्हाटएवर सॉल्व करने के बाद आपको x माइनस वाई की वैल्यू मिलेगी और x प्लस वाई की वैल्यू मिलेगी. जो भी वैल्यू आपकी u की आएगी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग. जब उसके बाद फाइनली जब आप x और y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड मिलेगी. यहाँ पे एक गलती जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं, u और v की वैल्यू निकाल दी और क्वेश्चन को छोड़कर आ गए. ऐसा नहीं करना है. u और v आपने क्या माना है वो करना है. लीनियर इक्वेशन है, एक ही वैल्यू आएगी, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, कुछ रिजेक्ट करने का कोई पंगा नहीं है. आपके फ्रेंड ने बोला कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द बोट इज कमिंग आउट टू बी 6 किलोमीटर पर आवर. आई डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, बट परहैप्स मेनी ऑफ यू आर सेइंग so might be it will be correct. So this is how the equation is to be solved. Try the equation. सॉल्व करना नहीं होता है बताना, आई विल सॉल्व इट आउट, बट फिलहाल यू कैन फ्रॉम हियर यू कैन सॉल्व. इतना मुझे पता है कि इसके आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हो. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डाउट है प्रीवियस क्वेश्चन में. हाँ बताइए क्या डाउट है सर? वो सेकंड इक्वेशन का मतलब क्या है? क्योंकि सर उसमें हमें बोला कि इट कैन गो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम द सेम टाइम. फिर सर हमने उसे 8 के बराबर क्यों इक्वेट किया? उसकी जगह हम लोग 16 बाय x माइनस वाई इक्वल्स टू 32 बाय x प्लस वाई नहीं कर सकते? नहीं बेटा, इसको नहीं कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते क्योंकि इन द सेम टाइम यहाँ पे इसका मतलब ये है कर सकते हो.
It can go 16 kilometer upstream and 32 kilometer downstream in the same time. इसका मतलब आप ये भी ले सकते हो कि 16 upon x minus y is equal to 32 upon x plus y. That also you can take. Further, you can also take. Now see, there are two meanings here. या तो आप इसको इस तरीके से ले लो, या तो आप इसको ऐसे ले लो कि 16 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 32 अपॉन 16 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 32 अपॉन एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू 8. वो केस में इस पर जितने क्वेश्चंस मुझे पता है वहां पे ये लिखा होता है, इट टेक्स इक्वल टाइम इन गोइंग 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. अगर ये लिखा होता है, क्योंकि देखो दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज ऑल अबाउट द परसेप्शन. यू कैन टेक इट लाइक दैट ऑल्सो एंड मे बी यू विल गेट आंसर ऑल्सो. Maybe you will get answer also. एक बार try करना. I will also try and we'll talk about this tomorrow. Tomorrow means day after tomorrow कि क्या वैसे करने से आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. If you want you can try. जैसा सुनय ने बोला तो सर उससे भी सेम रिलेशन आ रहा है, फिर सर उससे भी आंसर सेम ही तो नहीं आ रिलेशन जाएगा. आएगा, उससे भी सेम रिलेशन आएगा. इनफैक्ट that will give you the answer quickly. That will give you the answer quickly. ये सर मैंने सर इसे एक सेम मेथड से भी कर सकते हैं सर. मैंने सीधा इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट ही कर दिया तो सर जो कांस्टेंट टर्म था वो कट गया, फिर सर x और y के बीच में रिलेशन आ गया और सर फिर वो पहले इक्वेशन में डाल दिया. You can in fact you will get the answer quickly. You can do it like that also, no problem. चलो next. अब इसकी बात करें. रमेश travels 760 kilometer to his home partially by train and partially by car. He takes 8 hours if he travels 160 kilometer by train and the rest by car. 12 minutes more if he travels 240 by train and the rest by car. Find the speed of the train and the car. ये क्वेश्चन है. लास्ट की चीजें इसमें इनकम्प्लीट है तो आपको बताना है find the speed of the train and of the car. आपको यहाँ पे स्पीड की ट्रेन की स्पीड और कार की स्पीड बतानी है. तो ट्रेन की स्पीड और कार की स्पीड बतानी है तो मान लो भाई ट्रेन की स्पीड x मान ली, कार की स्पीड y मान लिया. ठीक है, ट्रेन की स्पीड x मान लिया, कार की स्पीड y मान लिया. 760 किलोमीटर ये ट्रेवल कर रहे हैं and partly he takes 8 hours if he travels 160 by train. So 160 upon x plus 600 upon y is equal to 8. पहली इक्वेशन. दूसरी इक्वेशन क्या है? 240 by train. तो सर 240 upon x plus 760 में से 240 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा भाई? 520. 520 upon y will be equal to how much? 8 hours 12 minutes. अब यहाँ पे जो दूसरी गलती होती है वो ये होती है कि आप जो बच्चे सॉल्व करते हैं वो 12 को 6 आवर्स में कन्वर्ट नहीं करते. सो दिस विल बी 41 by 5. 41 by 5 कैसा आया? 8 plus 1 by 5. ये 1 by 5 कैसा आया सर? 12 minutes is equal to 12 by 60, that is 1 by 5 hours. So this will be 41 by 5. दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो. ठीक है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व करके आंसर निकाल लो. मेरे ख्याल से एक काम करो, एक बार दोनों इक्वेशन, पहले 1 अपॉन x को u मान लो, 1 अपॉन y को v मान लो. दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो. यू विल गेट सम इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स. ठीक है, ट्राई करना. आई एम नॉट सॉल्विंग इट. ठीक है, आई एम नॉट सॉल्विंग इट. Just try it and tell me what will be the answer. If you guys are not getting, then I will help you out. ट्रेन की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर आ रही है और कार की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर आ रही है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा. आपको क्या करना है? इतना इक्वेशन बना दिया, इसके आगे सॉल्व करने का महापाप मत करना. If you can solve it quickly, then fine. If you can't solve it quickly, don't solve it. क्या करेंगे आप ऑप्शंस में जाएंगे. कौन से ऑप्शन में जाएंगे? जैसे आपके दोस्त ने बोला कि सर ट्रेन की स्पीड
80 है और कार की स्पीड, ट्रेन की स्पीड 80 है और कार की स्पीड 100 है। अगर मेरे पास दूसरा ऑप्शन इस तरीके से लिखा होता कि ट्रेन की स्पीड 100 और कार की स्पीड 80, तो मैं पहले वाले ऑप्शन के साथ जाता, दूसरे वाले ऑप्शन के साथ नहीं जाता। क्यों ऐसा करता मैं? क्योंकि सर ध्यान से देखो, 160 से जो है 160 जो है वो 80 से डिवाइड हो रहा है, 600 जो है वो 100 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन जो 24 है, जो 160 है वो 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 160 जो है वो 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मेरे को कुछ फ्रैक्शन मिल रहा है। ये जो 600 है वो 80 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मेरे को कुछ फ्रैक्शन मिल रहा है। और मेरा जो लास्ट वाला इक्वल राइट हैंड साइड में जो नंबर है, दैट इज ए परफेक्ट नंबर, दैट इज नॉट ए फ्रैक्शन। तो मोस्ट लाइकली 10 आउट ऑफ 9 केसेस में ऐसा होता है कि आप दो फ्रैक्शंस को ऐड करो तो आपको एक नंबर नहीं मिलेगा। किसी किसी केस में होता भी है, लेकिन यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है, इसीलिए आई विल गो विथ ऑप्शन 80 एंड 100। ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताया। सब्जेक्टिव अप्रोच में तो आपको पूरा पूरा सवाल सॉल्व करना है। सब्जेक्टिव अप्रोच में आपको कोई, आपके पास कोई वो नहीं है, आपको पूरा पूरा सवाल सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, let us move to the next question. Okay, a vessel contains a mixture of 24-liter milk and 6-liter water, and a second vessel contains a mixture of 15-liter milk and 10-liter. Okay, how much mixture of milk and water should be? Leave this question. I'll leave this question. Okay, solve this question. The present age of a father is 3 years more than 3 times the age of his son. 3 years hence मतलब आगे आने वाले टाइम में father's age will be 10 years more than twice the age of the son. Determine their present ages. चलो देखो, प्रेजेंट एजेस डिटरमाइन करना है, तो अपन मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर की जो प्रेजेंट एज है, फादर प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स, और सन की जो प्रेजेंट एज है, सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू वाई. Now according to the question, the present age of a father is 3 years more than 3 times the age of his son. So x is equal to 3y plus 3. 3 years more than 3 times the age of his son. According to the question further, 3 years later, father's age will be 10 years more than twice the age of his son. 3 years later matlab x plus 3 will be equal to 10 years more than twice the age of his son, that is 2y plus 10. From here I am getting x minus 2y is equal to 7. From here I am getting x minus 3y is equal to 3. दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, you will get the result y will come out to be 4. So the age of son is equal to 4. Yes sir, वही आ रहा. And the age of father is equal to 15. The age of son is equal to 4 and the age of father is equal to 15. I don't know how the question was framed. भाई मैंने क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया था, तो मुझसे मत पूछो कि ये कैसे आया. दिस इज ए केस ऑफ चाइल्ड मैरिज, बट आई कांट से एनीथिंग, राइट? सो बट द एजेस आर कमिंग टू बी 4 and 12. The ages are coming to be 4 and 15. सर यहाँ पे हमने गलत किया है सर. 4 and 15. क्या गलत किया बेटा? सर एक्चुअली सर ये जो सेकंड इक्वेशन बनाई है x plus 3 is equals to 2 into y plus 3 plus 10 होगा, क्योंकि सन की एज में भी 3 years ऐड 2 into y plus 3 plus 10 होगा. वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ तो गड़बड़ किया है. इसीलिए y की वैल्यू 10 years आएगी और फादर की एज 33 years. Thank you. Thanks for helping me. Now after 3 years x plus 3 will be equal to
2 times of y plus 3 plus 10. ये मिस्टेक हुई थी यहाँ पे. हमने क्या किया था, हमने फादर की एज को तो 3 साल बढ़ा दिया, लेकिन सन की एज को हमने 3 साल नहीं बढ़ाया. हमने सन की एज को उतना ही रखा. डेट वाज द मिस्टेक. आप लोग ऐसी गलतियां ना करें, ये ऐसी गलतियां हानिकारक हो सकती हैं. तो यहां से मुझे मिलेगा x minus 2y is equal to 16 minus 3 which is equal to 13, और यहां से मिला x minus 3y is equal to 3. From here now if I will solve, तो I am getting the value of y is equal to 10. हाँ अभी ठीक है, y की वैल्यू 10 आ गई, x की वैल्यू 33 आ गई. So this is how the question is to be done. देखो बेटा, यही होता है, एक छोटी सी गलती इतनी ज्यादा हानिकारक हो जाती है कि यू डोंट इवन नो कि यू डोंट इवन नो दैट यू आर डूइंग ए मिस्टेक. डोंट इवन नो दैट यू आर डूइंग ए मिस्टेक. तो प्लीज इस तरीके की गलती आप लोग मत करें. कैसे गलतियों को अवॉइड करोगे? सॉल्व एज मच क्वेश्चंस एज यू कैन. Solve as much questions as you can. So these are the mistakes. These are the very common mistakes that can happen. Avoid these mistakes. Solve as much questions as you can. Now what I will do is, okay, we are almost on the time, so I will stop the session here. Message of the class